Good evening. Okay. So yesterday we have seen, something about the regression. Now let's implement on some data set and let's see कि workout कैसे होता है. ठीक है. So yesterday we have seen हमने सबसे पहले क्या देखा एक training का देखा and second is got the epoch. Okay. Is my voice audible to you all clearly? Yes, sir. Okay. So yesterday we have seen, अगर हम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करते तो then what overfitting problem starts. ठीक है. So let's try to do something. Let's have the data set first. ठीक है. डेटा सेट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. ये इंश्योरेंस का डेटा सेट है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन. एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर एंड रीजन. और उसके बाद में वी हैव एक्सपेंसेस. दिस इज व्हाट अवर टारगेट फॉर. करेक्ट. सो अभी देखो. सो अभी for this kind of model in case of machine learning we need to have an linear regression. Correct. Linear regression जैसे models use करने पड़ेंगे. Second point, अब linear regression जो models use करना है then we need to have what multiple assumptions in order to be followed. Correct. हमारे पास कौन से assumption linearity है, no multicollinearity है, homoscedasticity है या फिर again multiple assumptions are there. ठीक है. अब देखो. So अभी in order to build the model we have to follow the assumptions. अगर हम follow नहीं करते तो हमारे results थोड़े खराब आते हैं. This is what we know. तो उसको हम बोलते हैं assumptions वाले मॉडल या फिर पैरामीट्रिक्स मॉडल जिसमें बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं. बट इन केस ऑफ सपोज आई एम बिल्डिंग एन मॉडल इन केस ऑफ डीप लर्निंग अ रिग्रेशन मॉडल तो यहाँ पे आई डोंट हैव एनी assumptions whether these two columns are related to each other or not. I don't have any problem. ठीक है. अगर इन दोनों कॉलम्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है भी तो इट इज नॉट आई नीड टू डील विद. बट लीनियर रिग्रेशन मुझे ये डील करना पड़ता था. ठीक है. Now here I can see this one is a continuous column, this is a categorical, this is continuous, this is categorical again, this is categorical and this is categorical. ठीक है. अब this basically the categorical values are not accepted in case of above neural network also. ठीक है. We need to convert into the one hot columns. ठीक है. ये चीज हमको पता रहनी चाहिए. I have uploaded the data. ठीक है. इसको कॉपी कर देते हैं. Let's import some libraries. ठीक है. सबसे पहले import numpy as np, import pandas as np, import tensorflow as tf. Again we require matplotlib to import matplotlib dot plot as tld. Let's run it. ठीक है. Now we have the libraries with us. Data set read कर लेते हैं. सबसे पहले इंश्योरेंस नाम दे देते हैं पहले इसको. इंश्योरेंस इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv कंट्रोल c और उसके लेट्स सी. ठीक है. So this is what the data we have it. Age, sex, BMI, children, smoker, region, and expenses. Expenses is our what target column. Correct. अभी देखो. So now we need to convert some categorical columns into the basically into our numeric column. जैसे female, male. ठीक है. फिर we have smoker,
a region also, we need to convert it into the numerical columns. This is what we are expecting, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क भी कैटेगरिकल एक्सेप्ट नहीं करता है. कैटेगरीज आर ओनली एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ ट्री बेस्ड एल्गोरिथम, वेदर इट्स अ डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एडाबूस, एक्जीबूस, सिर्फ वहां पे कैटेगरीज आर एक्सेप्टेड. बट इन केस ऑफ बाकी की कोई एल्गोरिथम्स में कैटेगरीज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. ठीक है. सो नाउ टर्न ऑल द कैटेगरीज इनटू नंबर्स. ठीक है. अब देखो, so now we have lots of technique in order to convert to the encoding. So encoding in machine learning. So a lot of techniques are there. अगर हम देखें जैसे कि टेबल encoding, ordinal encoding, again we have cat encoding is also there. ठीक है. This is what one hot encoding. One hot encoding में हमको पता है 1 and 0. ठीक है. Dummy encoding जिसमें है basically जैसे A is dummy encoding. Again we have drawbacks, vector, hash encoder. And I don't think here they have given a good examples. Here, yeah, this one. Okay, so this is one is a good one. Okay. Okay, so this one is a one hot encoding, label encoding, ordinal encoding, count encoding, target encoding, leave one out encoding, cat boost encoding. Okay, so adding your page for this reference, you can try it out. Okay. ठीक है, बहुत अच्छा है. दिस काइंड ऑफ एनकोडिंग्स इवन वी आर यूजिंग, इवन हम अपने हमारे प्रोजेक्ट्स में टारगेट एनकोडिंग, और उसी के अंदर टारगेट एनकोडिंग के अंदर WOE भी आता है. दैट इज व्हाट वन हॉट एनकोड, दैट इज वेट ऑफ एविडेंस. ठीक है. सो अगेन जैसे टारगेट एनकोडिंग है, टारगेट एनकोडिंग के अंदर ही WOE आता है, हम ये यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स आर देयर, यू कैन यूज इट. आपको जो यूज करना है, जैसे टारगेट एनकोडिंग भी है, वैसे एम एस्टिमेट भी, बट ये वगैरह हमने ट्राई आउट कभी किया. ठीक है. यू कैन यूज मल्टीपल टाइप ऑफ एनकोडिंग, इट विल इफेक्ट योर रिजल्ट्स आल्सो. ठीक है. एनकोडिंग अगर बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं. ठीक है. सो इंश्योरेंस अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर वन हॉट कर देते हैं. अगर मुझे इंश्योरेंस डेटा सेट का वन हॉट करना है तो pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज. ठीक है. फ्रॉम दिस आई कैन हैव इट इंश्योरेंस. ठीक है. ये डेटा मेरा क्रिएट हो गया है. इसी का अगर मैं हेड देखना चाहता हूँ, ठीक है, वी कैन सी इट. अभी देखो 8 BMI चिल्ड्रन. ठीक है. दिस आर ऑलरेडी न्यूमेरिक्स. एक्सपेंसेस करेक्ट. फिर उसके बाद में मेल फीमेल, स्मोकर नो स्मोकर, उसके बाद में रीजन नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वन हॉट कॉलम्स. अब हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली हमारा डेटा सेपरेट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. So let's create our x and y. ठीक है. सबसे पहले x क्रिएट कर देते हैं. सो इंश्योरेंस, और इसमें से हमको क्या चाहिए, ड्रॉप करना पड़ेगा. हमारा ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, हमारा जो कॉलम है वो कौन सा है, चार्जेस. दिस इज व्हाट द टारगेट कॉलम टू अस हियर. देयर आर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस, सॉरी. ठीक है. एक्सपेंसेस इज द कॉलम, करेक्ट. और उसका एक्सिस 1, एक्सिस इक्वल्स टू 1. दिस इज व्हाट वी हैव डन. और अगर मुझे y लेना है तो उसमें से हमारा जो कॉलम रहेगा वो कौन सा है, इंश्योरेंस, और उसके अंदर एक्सपेंसेस. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव डन. वी हैव क्रिएटेड अवर x एंड y. बेसिकली हमने अपना डेटा तो बना लिया है. ठीक है. इफ यू वांट टू व्यू इट, वी कैन लेट्स व्यू द फीचर्स. ठीक है. दिस इज हाउ आवर x लुक्स लाइक. ठीक है.
नो गो ऑन क्रिएटिंग अवर, सबसे पहले हमारा एक्स एंड वाई इज रेडी, लेट्स स्प्लिट द डेटा सेट। ठीक है, लेट्स स्प्लिट द डेटा सेट इन ट्रेनिंग टेस्ट। ठीक है, सो ट्रेनिंग टेस्टिंग में डेटा सेट स्प्लिट करने के लिए हमको लाइब्रेरी लगेगी, वो कौन सी है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमको लगेगा फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, तो लेट्स हैव इट फ्रॉम sklearn from sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split। ठीक है, now this is what we have it, train test split हमारे पास रेडी है। तो सबसे पहले हमारे पास x train और उसी का एक ये रहेगा x test comma y underscore train comma y underscore test। ठीक है, x train, x test, y train और y test, and then we have train underscore test underscore split। Now we need to pass over data। तो सबसे पहले मेरी फीचर्स क्या है, मेरी फीचर्स x है, उसके बाद में मेरा टारगेट है y, फिर उसके बाद में मुझे ट्रेन साइज या फिर मैं टेस्ट साइज कुछ भी दे सकता हूँ। सो टेस्ट अंडरस्कोर साइज, टेस्ट साइज हम दे देते हैं 0.2 की, और उसके बाद में हम रैंडम स्टेट दे देते हैं, वो हम 42 दे देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन, करेक्ट। शेप हम इनका लेंथ या फिर शेप चेक कर सकते हैं। सो लेन ऑफ कंट्रोल में कॉमा और उसके बाद में लेन ऑफ एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, 1078 एंड 268। ठीक है, दिस इज व्हाट लेन, या फिर आपको शेप चेक करना है, सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप कर लेते हैं, और उसके बाद में वाई एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स वी हैव 11 नंबर्स ऑफ फीचर्स वी हैव इट। इसका मतलब मेरा इनपुट डायमेंशन जो रहेगा इट शुड बी 11। ठीक है, फॉर श्योर। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन बिल्डिंग द मॉडल। सेट द random set first, so tf dot random dot set underscore c, और मैं 42 सेट कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ create the model architecture। now let's create first just a random model। हम सिंपल सा एक बना लेते हैं, इंश्योरेंस मॉडल अंडरस्कोर 1। ठीक है, सो tf डॉट keras डॉट sequential keras डॉट मॉडल डॉट sequential। ठीक है, सबसे पहले let's create one first hidden layer, then let's create an output layer। this is what we are expecting। ठीक है, so अगर मैं tf dot keras dot dense अगर मैं लिख देता हूँ, this is what my first layer looks like, tf dot keras dot dense, और मैं उसमें सिर्फ एक न्यूरॉन दे देता हूँ। राइट नाउ वी आर जस्ट क्रिएटिंग डमी वन, उसके बाद में अच्छा बनाएंगे। सो अगेन मैं और एक ले लेता हूँ, tf dot keras dot dense। ठीक है, उसमें भी एक सिंगल न्यूरॉन ले लेता हूँ, दैट्स इट। सो हम सिर्फ एक सिंपल सा आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज द फर्स्ट लेयर जिसमें एक न्यूरॉन है, दिस इज द सेकंड लेयर जिसमें और एक न्यूरॉन है, और उसी के बाद में हमको एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग। लेट्स कंपाइल द मॉडल। ठीक है, नाउ यस्टरडे वी हैव कम अक्रॉस वन क्वेश्चन कि हाउ द यू नो अंडरफिट मॉडल लुक्स लाइक। नाउ दिस इज व्हाट अंडरफिट मॉडल लुक्स लाइक। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करना है, लेट्स कंपाइल। सो इंश्योरेंस मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करेंगे, सबसे पहले हमको डिफाइन करने पड़ेंगे कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहले मुझे लॉस डिफाइन करना पड़ेगा। सो लॉस मुझे डिफाइन करना है tf dot keras dot losses
डॉट एम ए, मैं एम ए लॉस कंसिडर करता हूँ। फिर उसके बाद में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजर। मैं ऑप्टिमाइजर फिलहाल बहुत ही सिंपल एस यूज कर लेता हूँ, टी एफ डॉट कीरास डॉट ऑप्टिमाइजर्स। अभी ये ऑप्टिमाइजर्स इक्वल्स टू मैंने एस यूज कर दिया, डॉट एस ठीक है। अगर मैं बैच साइज नहीं देता हूँ तो ये मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया है, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एमएससी भी लिख सकता हूँ, बट लेट्स राइट एमए, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट डन, हमने मॉडल को कंपाइल कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू फिट द मॉडल, लेट्स फिट द मॉडल, ठीक है। अब मॉडल फिट करने के लिए हमको पता है हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस मॉडल डॉट फिट करते हैं, डॉट फिट करते हैं। अब फिट किसके ऊपर करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले ट्रेन डेटा के ऊपर फिट करेंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। और उसका टारगेट वेरिएबल क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में मुझे अगर कुछ इपॉक्स देना है, इपॉक्स इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। दिस इज व्हाट द पैरामीटर्स आई हैव गिवन। नाउ लेट्स रन इट। चाहे तो मैं वर्बोस और भी पैरामीटर्स है ये दे सकता हूँ, tf.keras.layers.dense, अब क्या हो गया, इनवैलिड ऑप्टिमाइजर्स, ऑप्टिमाइजर्स नहीं है, ऑप्टिमाइजर, ठीक है। नाउ इट हैज स्टार्टेड। अब देखो, नाउ दिस इज व्हाट द अंडरफिट मॉडल लुक्स लाइक। अंडरफिट का मतलब क्या है कि देखो मॉडल हमारा इनफ कैप्चर नहीं कर पा रहा है पैटर्न्स को, ठीक है। अब ये हमको मैट्रिक्स से भी समझ में आएगा, सो लेट्स सी द मैट्रिक्स फ्रॉम स्टार्ट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देख रहे हैं, द एमएई इज व्हाट 8557.204, यानी 8557 इज व्हाट एमएई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब मॉडल स्टार्ट हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हम कैसे नीचे आएंगे, हमारा लॉस पैरामीटर जो वो नीचे आना चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स सी 8007 788 7800 आ रहा है, फिर उसके में 757 है, फिर उसके में 7643 है, देन 7656 7657, अगेन इट इज डिक्रीज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। 100 इपॉक्स हो गए, 100 इपॉक्स हो रहे हैं, वी आर सीइंग नाउ इट इज नियरली 7000 समथिंग इटसेल्फ, ठीक है। 100 इतने इपॉक्स होने के बाद भी हमारा मॉडल दिखा रहा है कि 7291, कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ। इट स्टार्टेड विद 8600 एंड उसके में इपॉक्स 100 कंप्लीट होने के बाद वो नियरली 7291 है। तो अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं है कि ताकि वो हम मॉडल के बेसिकली डेटा के पैटर्न्स लर्न कर पाए। So this is the problem actually we are facing and this is called as an underfit basically. Underfit का यही मतलब होता है। अगर मैं बायस ट्रेड ऑफ कर देखता हूँ, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कर, उसी से मैं समझ में आ जाऊंगा कि मेरा लॉस कभी इतना घटा ही नहीं है कि मैं ओवरफिट की तरफ जाऊँ, ठीक है। अगर मैं इंश्योरेंस मॉडल को इवेल्युएट करना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज वी आर इवेल्युएटिंग इट, तो कंट्रोल भी कर देते हैं, डॉट इवेल्युएट, ठीक है। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर करते हैं और उसका जो वाई अंडरस्कोर टेस्ट है, ठीक है। तो हमको रिजल्ट मिलता है कि 7822 7822। सो इन केस ऑफ रिग्रेशन अगर मैं यहाँ पे एमएससी की जगह एमएई की जगह एमएससी यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एमएई दिखता था और यहाँ पे एमएससी दिखता था। बेसिकली वन गिव्स अस द लॉस एंड सेकंड गिव्स अस द एक्यूरेसी, बट जो मैं मैट्रिक्स रखता हूँ वो मैट्रिक्स मुझे सेकंड पार्ट में दिखता है, ठीक है। मैंने एमएई ही रखा है, इस वजह से हमको दोनों जगह सेम वैल्यूज दिख रही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज एमई एंड हियर आल्सो एमई। तो लॉस एमई और यहाँ पे मैट्रिक्स अगर मैं एमएससी रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे अलग दो वैल्यूज डिफरेंट दिखती है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी 7282 इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारा मॉडल इनफ नहीं है, यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर इनफ नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स बिल्ड एन सम गुड आर्किटेक्चर। तो इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल टू, ठीक है। चलो ले लेते हैं। सबसे पहले रैंडम सीट, यानी हमारा डेटा तो सेम रहेगा, इंश्योरेंस अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर 2 है। दिस इज द सेकंड मॉडल वी आर बिल्डिंग। tf.keras.sequential, सीक्वेंशियल के अंदर हम अभी लेयर्स बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी आर यूजिंग 100 लेयर। फर्स्ट लेयर में हम नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स रखते हैं 100, ठीक है, ताकि अभी हम थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में हम एक सेकंड लेयर बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखेंगे 10। ऑब्वियस है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क छोटा होना चाहिए कभी,
या फिर मैं उसमें कुछ 30-40 भी रख सकता हूँ, बट लेट्स कीप इट 10। और उसके बाद में मेरा जो लास्ट लेयर है वो डेंस लेयर, उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इक्वल्स टू 1, रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, फिर मॉडल अंडरस्कोर टू डॉट कंपाइल। ठीक है, लॉस तो हम एमए यूज करेंगे। अब ऑप्टिमाइजर स्टोकेस्टिक की जगह लेट्स गिव अ शॉट टू एडम। अभी मैं एडम ई ऑप्टिमाइजर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में एमएई इज द मैट्रिक्स वी आर यूजिंग। फिर उसके बाद में हम डॉट फिट करते हैं हमारे सेकंड मॉडल को, डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इपॉक्स इक्वल्स टू 100। अभी देखो, अगर मैं ये सब जो है मेरा ये जो पूरा एंटायर रिजल्ट है, अगर ये जनरेट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं वर्बोस इक्वल्स टू 0 लिखूंगा। अगर मैं वर्बोस इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, इसका मतलब जितना भी बैकएंड में हो रहा है वो सब प्रिंट करेगा। दिस इज व्हाट। ठीक है, ओके, लेट्स फिट द मॉडल, ये हम फिट कर देंगे। और उसके बाद में ये जो भी हिस्ट्री है इसको हम ले लेते हैं, हिस्ट्री अंडरस्कोर टू। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारा रिजल्ट अभी जनरेट होगा वो हम हिस्ट्री अंडरस्कोर टू ये डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे। इपॉक्स इक्वल टू 100 है, इस पे हम रन कर देते हैं अपना मॉडल। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अभी देखो, इट हैज स्टार्टेड विद अ लॉस ऑफ 13,000। चलो ठीक है, मॉडल की पूरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। सो इट हैज स्टार्टेड विद अ लॉस ऑफ 13,267। 13,267 इज द लॉस एट द इनिशियल स्टेज, जब मॉडल शुरू हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में वी कैन सी द मैट्रिसेस आर मूविंग डाउन, 9,000, 7,000, 7,000 के बाद यू कैन सी 6,000 आल्सो इज देयर। फिर उसके बाद में अगेन वी आर सीइंग अगेन रिडक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो इट इज गिविंग टू 5,000 आल्सो। और उसके बाद में इट हैज कम टू नियरली 4,819। ठीक है, 4,819। अभी हमने क्या किया, थोड़ा मॉडल की साइज भी बढ़ा है, इन शॉर्ट आर्किटेक्चर की साइज भी बढ़ा है। अगेन वी आर यूजिंग ऑप्टिमाइजर एज एडम आल्सो। देन अभी मॉडल को एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, वो पैटर्न कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इट इज डूइंग। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स गिव इट अ शॉट, इवैल्यूएट करके देखते हैं। ठीक है, सो इंश्योरेंस इंश्योरेंस मॉडल 2 डॉट इवैल्यूएट। इवैल्यूएट कर लेते हैं हमारे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और इसका जो टारगेट है वो वाई अंडरस्कोर टेस्ट है। ठीक है, अभी देखो इट इज 4,696। अगर मैं इसके पहले का कुछ लॉस देखता हूँ तो इट इज नियरली 7,282, 7,282। सो व्हाट्स अ परसेंटेज नाउ? ठीक है, नियरली 64%। ठीक है, इतना कम मैं देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग अ रिजल्ट ऑफ नियरली 4,696। अभी देखो, now one thing we need to understand, now we have missed something। चलो ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि इससे भी कम लॉस हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी हमको सबसे पहले इसका लॉस ग्राफ देखना पड़ेगा। शायद ऐसा हो कि 100 इपॉक्स के बाद भी कुछ अच्छे रिजल्ट मिले, शायद हमने तो चेक ही नहीं किया है ना। नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री फर्स्ट, प्लॉट द हिस्ट्री। अब मुझे हिस्ट्री से समझेगा कि एक्चुअल में चल कैसे रहा है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, pd dot data frame history dot history ठीक है, डॉट प्लॉट कर देंगे अपन। और उसके बाद में plt डॉट बाय लेबल लॉस, plt डॉट x, और उसमें बॉक्स। ठीक है, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट हमको गलत बोल रहा है, दैट इज व्हाट हिस्ट्री अंडरस्कोर 2। ठीक है, इसको भी रन कर देते हैं। अभी देखो, सो इनिशियली इट स्टार्टेड विद 13,000 समथिंग, एंड उसके बाद में ये एंड हो रहा है कहाँ पे, हमको नियरली 4,000 समथिंग पे एंड हो रहा था। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, कहाँ पे एंड हो रहा है, नियरली 4,819। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज एंडिंग। अब देखो, दिस इज व्हाट द लॉस ग्राफ एक्चुअली लुक्स लाइक। अब ये देखने के बाद मैं एक बात तो समझ रहा हूँ कि लॉस हमारा अभी भी एक डिक्रीजिंग नेचर में चल रहा है। इसका मतलब है कि इससे भी अच्छे मैट्रिक्स हमारे आगे प्रेजेंट है।
इससे भी अच्छे हमारे मैट्रिक्स आगे प्रेजेंट है। क्योंकि देखो इनिशियल में अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, अगर मैं लेट्स कंसीडर मैं सिर्फ यहाँ पे कितने 20 पॉक्स तक ट्रेन करता हूँ, तो मेरे लिए लॉस क्या रहेगा, इट शुड बी नियरली जो भी है 7500, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है 20 पॉक्स तक। बट अगर मैंने 20 पॉक्स से ज्यादा ट्रेन ही नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि लॉस और भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स द लॉस इज अगेन डिक्रीजिंग एक्चुअली। इसका मतलब है कि मुझे और भी ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने एक डिसीजन ले ली कि इसको और भी ट्रेन करना है, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वैसे ही करते हैं, हिस्ट्री अंडरस्कोर 3 इक्वल्स टू इंश्योरेंस, हमारा मॉडल कौन सा है, इंश्योरेंस मॉडल, ठीक है। इंश्योरेंस मॉडल डॉट फिट कर देते हैं, फिर से एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। फिर से हम इपॉक्स लिख देते हैं, इपॉक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है। और इसको एक बार रन कर देते हैं। अभी मैंने क्या किया, 100 इपॉक्स तक रन किया, और मैंने क्या किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, दैट इज फाइन। मैंने बट मॉडल इंश्योरेंस मॉडल 2 किया और उसके ऊपर डॉट फिट किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आई विल टेल यू। मैंने इसके पहले जो मॉडल रन किया, it has started a loss with what 13,000 and it had ended with what 4,000 something 4,800, करेक्ट है। अब मैंने सिर्फ 100 इपॉक्स तक ट्रेन किया था मॉडल को। राइट नाउ व्हाट आई हैव डन, अभी मैंने 100 इपॉक्स से लेके और 100 इपॉक्स ट्रेन किया, यानी 100 से 200 इपॉक्स तक ट्रेन किया, ठीक है। और उसका जो पहला लॉस रहेगा वो कितना रहेगा, इसके मतलब ये वाला उसका पहला लॉस रहेगा, यू कैन सी 4735, यानी 4696 के बाद में जो नया लॉस था वो कौन सा था, 4735। और उसके बाद से वो लॉस अगेन इट हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग। हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, एवरीवन, कि क्या किए हमने, यस नो एनीथिंग? Yes, sir. So initially we have trained our model from 0 to 100 epochs, correct? ठीक है। हमारा जो एरर था, इट हैज स्टार्टेड विद 13K एंड reduced to nearly 4.9K, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगेन आई हैव ट्रेन्ड द मॉडल फॉर मोर 100 इपॉक्स, हमने और 100 इपॉक्स ट्रेन किया, तो इसका मतलब टोटल ट्रेनिंग कितनी होगी हमारी, 200 इपॉक्स की होगी। बट दिस टाइम लॉस जो है इट हैज स्टार्टेड विद नॉट 13K या फिर उससे ज्यादा, दिस टाइम इट स्टार्टेड विद जहां से पिछला छूट गया था 4.9, वहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें कोई नहीं रहनी चाहिए गलती, चलो ठीक है, इट्स फाइन। अभी हमने ऐसा कर तो दिया है। नाउ लेट्स सी द लॉस, लॉस भी हमको दिखना चाहिए वैसा, अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो। हिस्ट्री अंडरस्कोर 3, ठीक है। लॉस कैसे आ रहा है देख लेते हैं, हमारा लॉस ग्राफ कैसे आ रहा है, यू कैन सी द लॉस ग्राफ। अभी देखो यहां से, यानी जो हमारा 4000 समथिंग था 800, वहां से नीचे गिर के इट इज कमिंग टू द स्टेबलाइज रीजन। अभी देखो दिस इज व्हाट अ ग्रेजुअल इट इज, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट अ ग्रेजुअल कर्व, क्योंकि अभी हमको बहुत ज्यादा लॉस में रिडक्शन नहीं दिख रहा है। इनिशियल स्टेजेस में हमको लॉस में बहुत ज्यादा रिडक्शन दिख रहा था, यू कैन सी फटाफट लॉस रिड्यूस हो रहा था। बट यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पे 20 इपॉक्स लेके 100 इपॉक्स का देखो, और इट इज द लॉस इज रिवॉल्विंग अराउंड 3.8K, यानी 3800 के लॉस के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, कुछ ज्यादा ऊपर और थोड़ा नीचे जा रहा है, दैट्स इट। बट यहाँ पे देखो अगर 0 से लेकर 20 इपॉक्स तो कितना लॉस फटाफट डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉडल नियरली हमको 3800 तक का लॉस हमको दे रहा है स्टेबलाइज रीजन में। अगर मुझे इसको ट्रेन करना है फिर से, तो ना आई वुड बी ट्रेनिंग फ्रॉम 0 टू नियरली सम कितना इपॉक्स, 130 140 इपॉक्स तक। 130 विल बी द मैक्सिमम इपॉक्स आई विल बी ट्रेनिंग, क्योंकि 100 इपॉक्स तो मुझे पता चल गया था इट वाज गिविंग अ रिजल्ट नियरली 4800, और अभी मैं और भी इसी पॉक कर लेता हूँ तो वो 3800 के आसपास आ रहा है, और 3800 के बाद में मुझे लॉस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, इट इज कमिंग इनटू द स्टेबलाइज रीजन, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक चीज हमने मिस आउट कर दी है, ठीक है। वो कौन सी है, हैव एनीबॉडी नोटिस दिस?
कि डीप लर्निंग में एक चीज करना हमको मैंडेटरी सर है। एक्टिवेशन फंक्शन। नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट वो रेलू ही रहेगा, मैंने एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे लिखा ही नहीं है। सो बाय लिखा ही डिफॉल्ट नहीं है सर, वो दिक्कत है। क्या करना भूल गए हम? स्केलिंग। सर एक्टिवेशन फंक्शन क्यों नहीं लिखा? स्केलिंग करना भूल गए हम। ठीक है, सो बेसिकली इट्स नॉट भूल गए, वी हैव नॉट डन। ठीक है, स्केलिंग करना बहुत मैंडेटरी है इन केस ऑफ डीप लर्निंग। अभी ऐसा क्यों, देखो, सो एक्चुअली हमारा डेटा स्केल्ड नहीं है ना, इसकी वजह से हमको इतना हाई इपॉक्स लग रहा है। अगर मेरा डेटा स्केल्ड रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी जो वैल्यूज है इट इज रेंजिंग बिटवीन सम बेसिकली अ स्पेसिफिक रेंज। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूँ तो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू रहती है, एंड इट हेल्प्स टू इजीली कन्वर्ज। वो मुझे क्या हेल्प करता है, वो इजीली कन्वर्ज करने की कोशिश कर देता है, कहाँ पे, मेरे इन शॉर्ट ग्रेडियंट डिसेंट को। ठीक है, अब इन प्रैक्टिस हम नॉर्मलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्डाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, नो लेट्स टेक द डेटा। अभी ये फाइल यूज नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इट, लेट्स रन दी मॉडल। यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, स्केलिंग। इससे क्या इम्पैक्ट करता है वो देखेंगे। सो स्केलिंग अगर मुझे यूज करना है तो हम मिन मैक्स स्केलर भी यूज कर सकते हैं, और वन हॉट एनकोडर भी हमको लगेगा बेसिकली, अगर मुझे बाकी के कैटेगरिकल कॉलम से डील करना है। ठीक है, सो उसके लिए सिटी ट्रांसफॉर्म या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मर ये सब चीजें हमारे पास आती है। सो फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज import make underscore column underscore transformer। ठीक है, अगेन वी विल बी रिक्वायरिंग फ्रॉम sklearn dot preprocessing dot preprocessing import min max scalar कॉमा, हमको वन और एनकोडर भी लगेगा। ठीक है, लेट्स इंपोर्ट दिस फर्स्ट। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट डन। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिटी इज दी ऑब्जेक्ट, मेक अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अभी उसके इसमें सबसे पहले हमको मीन मैक्स स्केलर कौन से कॉलम्स पे करना है वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद में ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये हमारा मैक्स स्केलर हो गया, और उसके बाद में वन हॉट एनकोडिंग हमको देना पड़ेगा। वन हॉट एनकोडिंग एंड, और उसके बाद में these are the columns। ठीक है, तो सबसे पहले मीन मैक्स स्केलर हम किस किस कॉलम से करेंगे, एज के ऊपर करेंगे, बीएमआई के ऊपर करेंगे एंड चिल्ड्रन के ऊपर करेंगे। ये तीन कॉलम्स हमारे न्यूमरिक है, इनके ऊपर हम मीन मैक्स स्केलर कर सकते हैं। देन वी हैव सेक्स, उसके में स्मोकर, और उसके में रीजन। दिस इज व्हाट द कैटेगरिकल फीचर्स वी हैव इट, एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपने कॉलम्स लिख लेते हैं। मीन मैक्स स्केलर के लिए हमारे पास कौन से हैं, एज है,
या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंश्योरेंस डॉट कॉलम्स। ठीक है, वी हैव एज, देन वी हैव व्हाट, BMI, देन वी हैव व्हाट, चिल्ड्रन। ठीक है, फिर उसके बाद में वन हॉट मुझे किस किस ऊपर करना है। वन हॉट में ऐसा हो सकता है कि हैंडल, हैंडल इक्वल्स टू हैंडल, ठीक है। हाँ, तो उसमें वन हॉट किसके ऊपर करना है, सबसे पहले सेक्स, फिर उसके बाद में वी हैव स्मोकर। ठीक है, अगेन वी हैव अगेन वन कॉलम दैट इज व्हाट, रिलीजन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन बेसिकली। ठीक है, हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मर तो बन गया। नाउ लेट्स क्रिएट एक्स एंड वाई सबसे पहले। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स हम लेना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस से हम ड्रॉप कर देंगे, डॉट ड्रॉप। अब हमारे जो मेन कॉलम है, जैसे जो एक्सपेंस वाला जो कॉलम है, उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। एक्सपेंस हम लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस। सो दिस इज व्हाट एक्सपेंसेस, और ड्रॉप करना है मुझे कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वैसे ही मुझे वाई लेना पड़ेगा। बेसिकली वाई में क्या रहेगा, इंश्योरेंस, और इसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा, वो कौन सा, एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर उसके अंदर में एक्सट्रेन एक्सटेस्ट। ठीक है, सो build the train and test data set। ठीक है, सबसे पहले x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। इसी को हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, और उसके अंदर हमारी जो डेटा सेट है दैट इज व्हाट x y। सबसे पहले x है, देन वी हैव y, एंड देन वी हैव अगेन ट्रेन साइज या टेस्ट साइज, ट्रेन अंडरस्कोर साइज दे देते हैं दैट इज व्हाट 0.2, और उसके बाद में हम दे देते हैं रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल्स टू 42। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। करेक्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन कर दिया, इंश्योरेंस वाला। दिस इज व्हाट अवर, हमने बेसिकली डेटा सेट में से एक्सपेंसेस निकाल दिया, यानी टारगेट कॉलम निकाल दिया। ट्रेन टेस्ट लीड हमने कर दिया है, यानी हमारा एक्स ट्रेन ये बन चुका है, और एक्स टेस्ट ये भी हमारा बन चुका है। बट अभी तक हमने जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो यूज किया था, वो हमने अभी तक हमारे डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट्स फिट द कॉलम ट्रांसफॉर्मर और ट्रेन डेटा। अब देखो, सबसे पहले मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न रन करना पड़ेगा ट्रेन डेटा का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फिट करूंगा, यानी ct डॉट फिट किसके ऊपर, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, फिट कर दिया, यानी मैंने ट्रेन का पूरा पैटर्न लर्न कर लिया। अब उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म ऑन द गिवन डेटा। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर नॉर्मल, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए नॉर्मल लिख देता हूँ। ठीक है, अब उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, ct डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। फिट मैंने कर दिया है पहले, अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने की बारी है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किसको करेंगे, ट्रेन को करेंगे, और उसके बाद में टेस्ट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिट नहीं किया जाता है। सो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर नॉर्मल, उसके बाद में हम लिखते हैं ct डॉट ट्रांसफॉर्म, वो भी किसके ऊपर करना है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर करना है। ट्रेन के ऊपर फिट और ट्रांसफॉर्म, ये दोनों चीज आई, यू कैन नोटिस, और टेस्ट के ऊपर सिर्फ ट्रांसफॉर्म आया। ठीक है, ये सेल सिर्फ एक ही बार रन कर सकते हैं, दो बार रन करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंडल अननोन, DEL लिखा है मैंने, DEL। ठीक है, डन। सो इसका मतलब मेरा डेटा तो बन गया है। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स।
ठीक है, एंड दिस इज हाउ माय डेटा लुक्स लाइक। ये पूरा मेरा डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, अगर मैं पूरा एक्सट्रीन ऑफ नॉर्मल या फिर मैं अगर इसमें से जीरोथ एलिमेंट देखूं, जीरोथ रो यानी फर्स्ट रो अगर देखने की कोशिश करूं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बेसिकली अगर देखना ही है तो ये डेटा ये रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रेन, एक्सट्रेन डॉट एलओसी को रिप्रेजेंट करता है जीरोथ रो को। ठीक है, एक्सट्रेन डॉट एलओसी, ठीक है, अगर मैं एक्स जस्ट को 12 जीरो कर दूं तो इज इट शोइंग एक्सट्रेन डॉट लिस्टिंग। चलो ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर डेटा नाउ लुक्स लाइक। ये हमने उसके ऊपर मीन मैक्स क्लियर कर दिया। ये मीन मैक्स क्लियर के बाद हमारा डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी कॉलम्स देखना चाहूँ, सो बेसिकली अगर मैं ट्रेन डॉट शेप करूँ और उसके बाद में एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप करूँ तो शेप्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, इसका शेप क्या है 26711, 26711 और ये मेरा रियल डेटा का शेप है 267/6। ठीक है, 267/6 इज द रियल शेप। और उसके बाद में मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ये शेप चेंज हो गया हमारा 267/11। ठीक है, डन। नाउ लेट्स बिल्ड द मॉडल सबसे पहले। ठीक है, लेट्स सेट द रैंडम सीड। आप रैंडम सीड सेट नहीं करते तो भी चलेगा, बट मैं एक ही कोड 2-3 बार रन करता हूँ, इसकी वजह से मुझे सेट करना पड़ता है। तो tf डॉट रैंडम डॉट सेट अंडरस्कोर सीड, उसमें 42। ठीक है, फिर उसके मैं build the model architecture। ठीक है, so insurance underscore model underscore, this is the our third model। तो tf dot keras dot sequential। ठीक है, और उसमें sequential में सबसे पहले हम लिखते हैं tf dot keras dot layers dot dense। ठीक है, और उसमें मैं 100 ये देता हूँ सबसे पहले न्यूरॉन्स। और उसके बाद में हमने सेकंड भी बिल्ड किए थे जिसमें हमने दिए थे 10, और उसके बाद में हमने और एक बिल्ड किए थे जिसमें दिए थे 1। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, मॉडल आर्किटेक्चर हम बिल्कुल सेम रखने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव डन कंपाइलिंग ऑफ द मॉडल। ठीक है, कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले इंश्योरेंस मॉडल डॉट कंपाइल, और कंपाइल करते कैसा है, सबसे पहले लॉस लॉस डिफाइन करेंगे। सो इट इज tf डॉट keras डॉट losses डॉट MAE, और उसके बाद में ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजर हमको डिफाइन करना पड़ेगा tf डॉट keras डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट एडम। ठीक है, और उसके बाद में मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन कंपाइलिंग ऑफ द मॉडल। नाउ इट्स टाइम टू फिट द मॉडल। ठीक है, हिस्ट्री एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हिस्ट्री अंडरस्कोर 3 इक्वल्स टू इंश्योरेंस मॉडल 3 डॉट फिट। इसके ऊपर करना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर नॉर्मल डेटा, ये जो है हमारा उसके ऊपर फिट करना है। वाई अंडरस्कोर ट्रेन वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में इपॉक्स मुझे देखना है, इपॉक्स इक्वल्स टू मैं 200 देता हूँ क्योंकि हमने सेम आर्किटेक्चर यूज किया है। और वर्बोस इक्वल्स टू 1, यानी जो भी हो रहा है वो बेसिकली प्रिंट करेगा। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो यानी वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट हैज स्टार्टेड डाउन, और ये टोटल जाएगा 200 इपॉक्स तक। चलो ठीक है, ये रन होते रहेगा।
ठीक है। अब ये मुझे रिजल्ट दे रहा है कितना, 6024 have we lost anything? X train normal, X test normal. That started the loss with what? Fit. So it has started with 13,011 और उसके बाद में हमको ये लॉस दिख रहा है 7,000 और उसके बाद में कुछ ज्यादा हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, वाटर करते हैं। बैच 8 है। ठीक है, 16 इज गुड बैच साइज, 16 को बैच साइज रखेंगे हम। ठीक है, एंड नाउ लेट्स इवैल्यूएट द मॉडल फर्स्ट। ठीक है, 3631। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज व्हाट, 3604 as the MAE, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर वी आर गेटिंग 3604 व्हिच इज क्वाइट गुड नाउ। ठीक है, अभी ये हमारा क्या मिल गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया जो पहले से बहुत अच्छा है। अभी मैं चाहूँ तो आर्किटेक्चर में और थोड़े से चेंजेस करके मैं अच्छा ला सकता हूँ रिजल्ट। ठीक है, मैं चाहूँ तो और एक लेयर ऐड करके इसको थोड़ा और अच्छा मॉडल को अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, बट नाउ लेट्स सी द लॉस ग्राफ हाउ इट लुक्स लाइक। लॉस ग्राफ से हम समझ पाएंगे कि ये कन्वर्ज कितने जल्दी और या फिर कितना लेट कर रहा है। कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए अगर हमने बेसिकली डेटा के ऊपर नॉर्मलाइजेशन किया है तो।
सो इट इज history_3 बराबर है history_3 है ना, हाँ history_3 इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी, अब देखो हमने 200 इपॉक्स तक इसको ट्रेन किया एंड हियर वी आर सीइंग 175 के बाद में ये मॉडल कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है 175 के बाद में। ठीक है, अर्लियर जैसे कि यू कैन सी द लॉस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, 50 इपॉक्स तक रिड्यूस हो गया और उसके बाद में फिर से और हमको ग्रेजुअल दिख रहा है 150 इपॉक्स तक, और उसके बाद में अगेन वी आर सीइंग, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा एक स्टैग्नेशन हमको दिख रहा है, शायद और भी हम इसको ट्रेन करें तो हमको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एज द ग्राफ। ठीक है, अब ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राफ है बेसिकली, इफ सपोज वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज व्हाट द ट्रेनिंग ग्राफ, नॉट द ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग ग्राफ। ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग ग्राफ में कैसा होता है, ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन ग्राफ में ट्रेनिंग के साथ हम वैलिडेशन का डेटा भी पास करते हैं एंड वी विल सीइंग बेसिकली टू लाइंस नाउ। जैसे ये ट्रेनिंग में डिक्रीज होते जा रहा है वैसे वो वैलिडेशन में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो सेकंड लाइन हमको दिखाएगी। जैसे यस्टरडे वी हैव सीन 1-2 ग्राफ्स, ठीक है, वो ग्राफ्स हमने जो देखे थे वो बेसिकली ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन के ग्राफ्स होते हैं। नेक्स्ट कभी हम वो बनाएंगे, सो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन ग्राफ्स। नाउ दिस टाइम वी वर नॉट हैविंग डेटा दिस मच, फॉर दैट रीजन मैंने दो ग्राफ्स नहीं बनाए। So otherwise we will be building this kind of graph, training plus validation. ठीक है, अभी ये हमने बना दिए। Now let's go with so let's consider this is now our best model, हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो इनको सेव भी करना पड़ेगा। नाउ सेव की मल्टीपल हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे HD5 टेक्निक है या फिर डॉट सेव है, सिर्फ डॉट सेव मॉडल से भी हो जाता है। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू सेव द मॉडल लेट्स कंसिडर ये मेरा इंश्योरेंस मॉडल underscore model dot underscore 3. This is what our model looks like, correct? Now this is what our model is. ठीक है, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। सेविंग द मॉडल, ठीक है, इंश्योरेंस मॉडल डॉट सेव, और कुछ हम इसमें लिख देते हैं बेसिकली, कुछ फॉर्मेट अगर मुझे लिखने का है तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि बेस्ट अंडरस्कोर बेस्ट इंश्योरेंस अंडरस्कोर मॉडल डॉट H5, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सेव हो गया बेस्ट इंश्योरेंस अंडरस्कोर मॉडल H5, दिस इज व्हाट द मॉडल इज बीइंग सेव। ठीक है, अगर मुझे इसको लोड करना है तो लोड भी कर सकते हैं, जैसे कि tf.keras.models लोड दी मॉडल्स। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, tf.keras.load tf.keras.models डॉट लोड अंडरस्कोर मॉडल, और जो भी आपका मॉडल का फाइल पाथ है, नाउ दिस विल रन, और उसके बाद में हमारा मॉडल लोड हो गया। तो अभी मैंने कोई वेरिएबल दिया नहीं है, अगर मैं कोई वेरिएबल देता हूँ जैसे लोडेड अंडरस्कोर मॉडल, तो ये वेरिएबल में बेसिकली मेरा मॉडल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ये मॉडल स्टोर हो गया। इफ सपोज आई नीड टू हैव एन प्रेडिक्शन तो मैं सिर्फ लोडेड अंडरस्कोर मॉडल यूज करके कर सकता हूँ। अगर ये मॉडल मुझे डाउनलोड करना है, इफ इन केस ऐसा हो सकता है कि आपको शायद ये मॉडल डाउनलोड करना पड़े। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे एक टेक्निक है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जाके डाउनलोड ये ऑप्शन है, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डाउनलोड ऑप्शन रहेगा हर बार। ठीक है, तो नाउ वी कैन डाउनलोड द ऑप्शन, लाइक उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम गूगल कोलैब google.colab import फाइल्स। ठीक है, फिर लिखेंगे फाइल्स डॉट डाउनलोड जो भी हमारा है H5, इसको रन कर देते हैं एंड इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। ठीक है, डन, ये मॉडल मेरा डाउनलोड हो गया।
Okay, got the point everybody? यस सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने अभी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो हमारा डेटा साइज आई मीन शेप चेंज हो गया, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आई मीन वो कैसे चेंज हो गया शेप? हाँ देखो, सो सबसे पहले हमने क्या किए, मीन मैक्स स्केलर के ये स्पेसिफिक 3 कॉलम्स के ऊपर और 1 हॉट इनकोडिंग के ये कौन से 3 कॉलम्स के ऊपर किए। ठीक है, अभी देखो। ओके ठीक है, तो देखो अब एज, बीएमआई और चिल्ड्रन, इनकी वजह से कोई डेटा का शेप हमारा चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। सो दिस आर व्हाट 3 कॉलम्स। फिर उसमें उसके बाद में सेक्स में वी हैव 2 कैटेगरीज, दैट मींस 3 + 2 = 5। फिर स्मोकर में भी 2 कैटेगरीज होंगी, दैट इज व्हाट 5 + 2 = 7। और 7 के बाद वी हैव 4 रीजन्स इन टोटल, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 7 + 4 = 11, यानी टोटल 11 कॉलम्स वी हैव एज द इनपुट। ठीक है, तो हम जब शेप देखते हैं तो देखो 267/11, दिस इज व्हाट द शेप वी हैव इट। एक्चुअली ट्रेन साइज हमने बहुत कम लिया था, इस वजह से वो प्रॉब्लम हम फिक्स कर रहे थे। नाउ लेट्स रीरन फ्रॉम स्टार्ट। अभी हम देखते हैं, क्योंकि actually it should converge at a very less epochs. Now we will be seeing a right graph. So just one simple, you know, I have made one mistake. टेस्ट साइज लेता हूं मैं, बट यहाँ पे मैंने ट्रेन साइज इक्वल्स टू 0.2 लिख दिया था और इस वजह से हमारे ग्राफ अच्छे नहीं आ रहे थे। नाउ लेट्स सी द ग्राफ हाउ इट लुक्स। अभी अच्छा ग्राफ दिखेगा। तो इन अर्लियर हमने जब ये वाला मॉडल बिल्ड किए थे तो हमको स्टेबलाइज रीजन कब मिल रहा था, 120 इपॉक्स के बाद में। 100 इपॉक्स हमने ऑलरेडी ट्रेन कर दिए थे और 120 इपॉक्स के बाद में हमको स्टेबलाइज रीजन इन द सेंस थोड़ा हमको लॉस बहुत ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होते हुए दिख रहा था। नाउ लेट्स सी दिस वन। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस वन। हम ये प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, प्लॉट हिस्ट्री। ठीक है, जब हम हिस्ट्री प्लॉट करते हैं, अब देखो अब वही हमको इपॉक दिख रहा है कहाँ पे, 50 के पास। 50 के पास हमारा जो भी है वो एकदम नॉमिनल हमारा डिक्रीज है। तो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर डूइंग नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग ऑफ डेटा। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जेंस हमारा थोड़ा फास्टर होता है। हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस फास्ट हो रहा है। तो पहले जब मैं पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ तो वो इट इज टेकिंग नियरली 120 इपॉक्स और उसके बाद में वो थोड़ा सा कम हो रहा है। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वो 50 इपॉक्स के बाद ही पूरा स्टेबलाइज हो जाता है। सो इस वजह से स्केलिंग इज वेरी नेसेसरी। इस वजह से व्हाट स्केलिंग इज वेरी नेसेसरी इन केस ऑफ डीप लर्निंग। स्केलिंग करेंगे तो कन्वर्जेंस हमारा फास्ट होगा। ठीक है, हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी नाउ? Yes, लेकिन MAE में कोई चेंज नहीं है, लाइक MAE में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, MAE में नहीं आएगा चेंज ऐसा। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, सो लेट्स कंसीडर मैं एक मॉडल बिल्ड करता हूँ। ठीक है, मॉडल बिल्ड करता हूँ और उसमें हमारा जो भी ये डेटा है, ठीक है, मैंने नॉर्मल मॉडल बिल्ड किया, इसके ऊपर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। लेट्स कंसीडर हमारा लॉस आता है 1000। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं और एक मॉडल बिल्ड करता हूँ और एक मॉडल बिल्ड करता हूँ और इसमें डेटा हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, डेटा हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा लॉस रिड्यूस हो जाएगा क्या? नहीं, लॉस तो उतने का ही उतना ही, प्रोपोर्शन में लॉस है। सो लेट्स कंसीडर अगर पहले लॉस, अगर मेरा जो भी पहले हमारा लॉस कुछ अलग रहता होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमारा लॉस कोई स्पेसिफिक रेशियो में होगा, तो वो स्पेसिफिक रेशियो हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद भी रहेगा। बट डिफरेंस कहाँ आ गया, कन्वर्जेंस में आ गया। पहले हमको 120 बॉक्स लगते थे कन्वर्ट होने में, क्योंकि वेट्स बायसेस को बार बार ऊपर नीचे जाने से उसको टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स थे। बट जब नंबर्स रिड्यूस हो गए तो ऑटोमेटिकली वेट्स और बायस जो है ना वो ये होने लगे, जल्दी कन्वर्ट होने लगे। एंड फॉर दैट रीजन वी आर गेटिंग कन्वर्जेंस एट 50th इपॉक। ठीक है, करके हमको 50th इपॉक के ऊपर कन्वर्जेंस दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 120 इपॉक्स के यहाँ पे नियरली कन्वर्जेंस को दिख रहा है। लॉस तो उतना ही रहेगा, लॉस क्यों कम ज्यादा होगा, डेटा तो हमारा वही है ना, डेटा तो वही है, तो फिर लॉस कैसे कम ज्यादा हो सकता है? हाँ, अगर मैं ऑप्टिमाइजर चेंज करूंगा तो आपको लॉस कम ज्यादा दिखेगा।
आप so right now we have tried with the Adam, you can try it with the SGD also. ठीक है. Okay, anybody with any doubts into this? सर डीप लर्निंग में स्टैंडर्ड स्केलिंग हम लोग यूज नहीं करते. Hold on, I'm not getting you. Yeah, go ahead. What's the question? या सर मिन मैक्स स्केलर हम लोगों ने यूज किया है ना, सो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, यू कैन ट्राई इट. स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर सकते हैं और स्केलिंग टेक्निक्स भी है हमारे पास, वो स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है. मोर एंड मोर यू ट्राई, मोर एंड मोर डिफरेंट रिजल्ट्स यू विल गेट एंड मोर यू विल एनालाइज. ऐसे ही होगा. ठीक है. राइट नाउ इन क्लास आई डोंट हैव दैट मच कि मैं ये भी टेक्निक यूज करूँ, ये भी टेक्निक यूज करूँ. आई कैन यूज मल्टीपल टेक्निक्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सेट, बट एक ही डेटा सेट के ऊपर मैं आपको ये सब एक ही साथ इतने सारे टेक्निक्स नहीं यूज करके बता सकता. ठीक है. अभी इन केस ऑफ अगर मैं CNN मॉडल बिल्ड करता हूँ तो वहां पे सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन प्रेफर किया जाता है, दैट मींस मीन मैक्स स्केलर. ठीक है. बट अगर हम दूसरा कोई मॉडल बनाते हैं जैसे ANN में बनाते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन भी प्रेफर किया जाता है. ऐसा है इस वजह से. ठीक है. सर नंबर ऑफ epochs कम होने से like what is the benefit, like we have reduced the number of epochs, like GPU का कंजम्पशन. consumption. थिंक अबाउट इट. अगर आपका मॉडल एक दिन लगातार चल रहा है बट आपने अगर ऐसा कुछ किए कि वो मॉडल शायद 3 घंटे में हो गया कंप्लीशन, तो आपने कंजम्पशन कम किया ना, तो बिल ऑब्वियसली बिल जनरेटेड विल बी ऑन अ लेजर साइड. Okay, thank you. हेलो सर. या गो अहेड. सर मेरा या गो अहेड विकी. गुड. इस चर्न प्रेडिक्शन में हम कौन सा पैरामीटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? आई मीन दिस इज नॉट टू टुडेस क्लास क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चन इज इन माय माइंड. द इंश्योरेंस, यस, चर्न के लिए कौन सा पैरामीटर हमें कंसीडर करना चाहिए? आई मीन परफॉर्मेंस पैरामीटर. परफॉर्मेंस इन द सेंस आप डेटा के ऊपर पूछ रहे हो कि मॉडल के ऊपर पूछ रहे हो? नहीं, मॉडल के ऊपर. आई मीन मशीन लर्निंग के हिसाब से बता दीजिए कि आई मीन प्रिसीजन, रिकॉल और एनीथिंग, कौन सा पैरामीटर हमें? मैट्रिसेस, यू आर आस्किंग अबाउट द मैट्रिसेस. यस. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन. अभी देखो चर्न ये एक थोड़ा सेंसिटिव इशू रहता है. जैसे कि एक बेसिकली वन कस्टमर लीविंग एंड इफ सपोज आई एम आइडेंटिफाइंग 10 कस्टमर फॉल्सली. ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है. जैसे कि देखो एक कस्टमर अगर जा रहा है छोड़ के, बट अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है तो नो इशू फॉर मी. बट अगर एक कस्टमर जा रहा है और उसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है तो नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर मैंने देखो एक कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 10 कस्टमर्स को फॉल्सली आइडेंटिफाई कर लिया. अभी क्या हुआ, मैंने एक कस्टमर उसमें शायद 10 में से एक छोड़ के जाए, एक एट्राइट कर दे. ठीक है. बट 9 कस्टमर्स आए फॉल्सली आइडेंटिफाइड. एट द सेम टाइम अभी मुझे देखना पड़ेगा कि जो कस्टमर छोड़ के गया अगर वो मेरा $10 का नुकसान कर रहा था, तो बाकी जो 9 लोगों को मैंने पकड़ा है वो कितने डॉलर का नुकसान कर रहे हैं. सो नाउ इफ इट इज लेस देन $10 देन फाइन, माय मॉडल इज वर्किंग गुड. बट अगर उन सबका समेशन मिलके अगर मेरा $10 के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आदमी चर्न कर रहा है उससे ज्यादा तो मैं लॉस बना रहा हूँ, तो मॉडल का कुछ काम ही नहीं है. ऐसा है. ठीक है. सो यू नीड टू सी इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मनी. ठीक है, हमको मनी के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. जैसे कि फ्रॉड में भी वैसे ही रहता है. अगर मैं एक फ्रॉड पकड़ता हूँ बट उसके लिए मैं कितने फॉल्स आइडेंटिफाई करूँ, दैट इज फर्स्ट केस. और जितने लोगों को मैंने फॉल्सली आइडेंटिफाई किया है वो लोगों का पहले मुझे देखना पड़ेगा कि उनका रेवेन्यू कितना है, उन्होंने मुझे कितना जनरेट करके दिए और मैंने उनको जो फॉल्स आइडेंटिफाई किया उसमें से फिर कितना अट्रैक्ट कर देंगे. ऐसा है. सो अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, व्हाट मैट्रिक्स वी नीड टू, सबसे पहले हमको एफपीटीपी रेशियो देखना पड़ेगा कि व्हाट्स द एफपीटीपी रेशियो, कि मैं एक सही आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कितने फॉल्स पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट. वो रेशियो अगर मैं if it is I'm working with iteration, if suppose I'm working with churn, if suppose बैंकिंग डोमेन में एक स्पेसिफिक है कि 1:3 के ऊपर नहीं रहना चाहिए. ठीक है. अगर 1:3 के ऊपर रहता है तो दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम दो, क्योंकि हम इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है. तो दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट. और उसके बाद में कैसा होता है कि लेट्स कंसिडर अगर मैं चर्न बचाने की भी कोशिश करता हूँ बट रेवेन्यू मेरा कितना बच रहा है वो भी एक मैटर है. ठीक है. सो रेवेन्यू इज द वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड और उसके बाद में हम मैट्रिक्स डिसाइड कर सकते हैं.
आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड एफपीटीपी कितना रहना चाहिए, आपका प्रिसिजन रिकॉल कितना रहना चाहिए, बट फर्स्ट रेवेन्यू। सर ये एफसीटीपी क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एफपीटीपी का मतलब, देखो एक एक बेसिकली एक चर्न पकड़ने के लिए आपने कितने लोगों को चर्न बोल दिया, समझे आप? ठीक है, तो लेट्स कंसीडर मैंने एक मॉडल बनाया, मेरा मॉडल का काम क्या है, चर्न पकड़ना, करेक्ट? बट मैं एक चर्न पकड़ने के लिए मैं मल्टीपल लोगों को भी बोलूंगा ना कि दिस आर चर्न, करेक्ट? दिस विल बेसिकली एट्राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी मॉडल की एक्यूरेसी 100% है, मैं बोलूंगा वही एट्राइट करेगा, ऐसा रहेगा क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मैं और भी ज्यादा लोगों को बोलूंगा, शायद मुझे सिर्फ 100 लोगों को आइडेंटिफाई करना था बट मैंने 1000 लोगों को बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 900 पीपल्स आर व्हाट, फॉल्स, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। तो अभी वो 900 लोगों का रेवेन्यू अलग रहेगा और 100 लोगों का रेवेन्यू अलग रहेगा, करेक्ट? यस डेफिनेटली सर। हाँ बिल्कुल। तो नाउ दिस इज द इम्पैक्ट, यहाँ से इम्पैक्ट शुरू होगा बेसिकली, और इसके बाद में आपके मैट्रिक्स डिसाइड हो गए, मैट्रिक्स पहले डिसाइड नहीं होते कभी। ओके ओके, आई मीन अभी एक मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था या आई अंडरस्टैंड। और उसमें वही आइडेंटिफाई नहीं कर बिल्कुल पा रहे कि मतलब मैट्रिक्स कौन सा है, क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है करके। बिल्कुल They are asking about the what business insights you are providing us. Just tell me that things. बिल्कुल, I understand. So by asking you questions itself, I understand कि whether that person is having a company's problem or not. ठीक है? Yes. Okay. Yes, sir. ठीक है. Okay then, let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.